Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So today we are going to study a bit more about how do organisms reproduce. In the previous lecture we studied the very basic things about reproduction, in which we studied what is the need of reproduction, is it really necessary for the survival. Then we further studied about the different types of reproduction, the difference between them, and we just heard the names of the different types of asexual reproduction. So today we will be discussing more about these different types of asexual reproduction, and we'll be discussing a little more about the sexual mode of reproduction. Okay, so let's start this lecture, and before that I would like to inform you that we, the members of Tech Gurus, are starting a crash course for the student of standard 10th who are going to appear for the board exam, and it is going to be a 60-day course in which we will cover every topic of your whole 10 syllabus, may it be any subject, and we will be taking frequent tests to analyze your performance, and rest you can contact us. Here is the number mentioned on the screen and this is the address. So you can reach us on this address and you can contact us through this number. This is the phone number and this is the WhatsApp number. So do contact and don't miss this opportunity. Grab the opportunity as soon as you can, because it is going to benefit you. And for the dates, it's starting around 28th of November. Okay, fine. So let's see today's topic, which is the different types of asexual reproduction. The different types of asexual reproduction. What are the different types of asexual reproduction? If I talk about the different types of asexual reproduction, so what are these? Number one comes fission, as studied earlier. First is fission. The second one is budding. The third one is fragmentation. Then we have regeneration. Then it is spore formation. And finally we have vegetative propagation. Okay? These are the 6 modes of asexual reproduction. These are the 6 modes of asexual reproduction. Fine. So let's study each of them. एक एक करके इन सबको पढ़ना हम शुरू करते हैं. First of all, fission. What is this fission? If I talk about fission, so fission is basically the division of a parent cell into 2 or more daughter cells. It is the division of a single entity into 2 or more parts, that is daughter cells. हम सबने अमीबा के बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना होगा. ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसका बॉडी का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है. अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. तो इसमें जो डिवीजन का प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर पॉपुलेशन या सर्वाइवल इंश्योर करना है कि उसकी प्रजाति, उसकी स्पीशीज खत्म ना हो, तो रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी. हमने पहले भी पढ़ा था कि सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए तो रिप्रोडक्शन उतना एसेंशियल नहीं है जैसे कि बाकी लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, बट reproduction is necessary for the survival of the species on the earth surface. अर्थ सरफेस पे बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें हमें देखने को मिलता है एक ऐसा प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज फिजन. ठीक है, तो फिजन में होता क्या है कि एक पेरेंट बॉडी होता है. तो ये एक अमीबा है और ये अमीबा का पेरेंट बॉडी है. अब इस पेरेंट बॉडी से हमें डॉटर सेल्स चाहिए. अब ये जो टूट के 2 अलग अलग सेल्स बनेंगे, इनको हम नाम देंगे डॉटर सेल्स. तो होता क्या है, सबसे पहले होता है इस अमीबा में न्यूक्लियस का डिवीजन. सबसे पहले क्या होता है,
न्यूक्लियस का डिवीजन जिसे हम नाम देते हैं which we call as karyokinesis, which we called as karyokinesis, followed by साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दो अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होके दो अलग अलग न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एंड उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और क्या बन जाते हैं, दो डॉटर सेल्स। क्या बन जाते हैं, दो डॉटर सेल्स। क्या बनते हैं, दो डॉटर सेल्स। दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है इन फिजन। ठीक है, तो ये जो फिजन मैंने आपको बताया है ये बाइनरी फिजन है। बाइनरी यानी कि एक बॉडी टूट के दो अलग अलग बॉडी बन रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन भी देखा जाता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक जो पेरेंट बॉडी होता है, पेरेंट बॉडी से बहुत सारे डॉटर सेल्स निकलते हैं। यहाँ तो सिर्फ दो निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक पेरेंट बॉडी कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 और 3 डॉटर सेल्स। तब हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। ये क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं। सो द सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स, नाम से ही समझ में आएगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है स्मॉल पीसेस या स्मॉल सेगमेंट्स। तो वैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म का बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और वो छोटे छोटे टुकड़े एक पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। दैट प्रोसेस इज रेफर्ड एज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग समथिंग इनटू पीसेस और फ्रेगमेंट्स। ठीक है, नॉट समथिंग, यहां हम बात कर रहे हैं दिस समथिंग विल बी कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन into small fragments, into small pieces, and those small pieces will grow into a single individual each. That process is termed as fragmentation. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है और वो छोटे छोटे सेगमेंट्स एक पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। We call that process at fragmentation. We call that as fragmentation. और ये किस में देखा जाता है, it is seen in Spirogyra. It is seen in Spirogyra. और अगर Spirogyra की बात हो तो ये एक एल्गे है। अगर मैं स्पाइरोगायरा की बात कर रही हूँ कि ये स्पाइरोगायरा है क्या, तो ये स्पाइरोगायरा एक एल्गी है। ये प्लांट किंगडम का मेंबर है। जब आप 11th क्लास में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ आपको एक फाइलम मिलेगा जिसका नाम है एल्गे। वहाँ आपको पता चलेगा कि एक तरह का ग्रीन एल्गे होता है स्पाइरोगायरा, और ये जो स्पाइरोगायरा डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं तो हर एक फ्रेगमेंट एक नया स्पाइरोगायरा, एक नया डॉटर सेल बना लेता है। ठीक है, वेरी इजी, इट शुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट प्रोसेस इज बडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज बडिंग। बडिंग, जब बर्ड सुनते हो तो क्या समझ में आता है कि छोटी सी कली। बर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स में भी बर्ड आते हैं, रोजेस में बर्ड आते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स में बर्ड आते हैं। बर्ड का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी कली, एक छोटा सा आउटग्रोथ। तो ये जो बडिंग का प्रोसेस है इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है एंड वो आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होता है एंड फिर उस बॉडी से वो डिटैच होता है, पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, budding is the form of asexual reproduction where a new organism develop as a outgrowth or bud from the parent organism. It's like a mini version of growing of the parent. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा, हाइड्रा में देखने को मिलता है कि बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, फिर धीरे धीरे वो आउटग्रोथ डेवलप करता है एंड फाइनली वो बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और वो जो डिटैच्ड बड है, वो डिटैच्ड आउटग्रोथ है, एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है एक प्रजाति में जिसका नाम है हाइड्रा। जिसका नाम क्या है? हाइड्रा। ठीक है, वेरी इजी, मस्ट बी क्लियर टू यू। या नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा ये स्पोर क्या है भाई। स्पोर इज सिंपल, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ये काइंड ऑफ आप समझ सकते हो, ये काइंड ऑफ एग्स ही हैं। ठीक है, जैसे एग्स फ्यूजन होता है, एक नया जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। स्पोर्स भी कुछ ऐसा ही होता है, बट यहाँ फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये एक अकेला स्पोर ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली ये फंगस में देखा जाता है, फंजाई, किंगडम फंगाई में देखा जाता है। ये कहाँ देखा जाता है? ये किंगडम फंजाई में देखा जाता है। क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये क्या होते हैं? ये सारे फंगस होते हैं और इनके पास स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट करते हैं तो उससे बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं। फिर होता क्या है, जब इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, तब ये स्पोर्स ग्रो करते हैं इनटू अ ऑर्गेनिज्म। इन स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है, अब इनका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन इनके लिए होता है जब इन्हें एक हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मिल जाता है, हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मिल जाता है फॉर परफॉर्मिंग द ग्रोथ ऑफ द न्यू बॉडी। तो ये क्या करते हैं, ये जो स्पोर होते हैं ये एक पूरा पूरा बॉडी बना देते हैं। ठीक है, spore formation is the method of reproduction used by certain organisms like fungi and some plants। इसमें क्या होता है, स्पोरेंजियम से बर्स्ट होके स्पोर्स निकलते हैं एंड स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो एक पूरा प्लांट, फंजाई बॉडी या जो भी बॉडी होता है वो उसे दोबारा से प्रिपेयर कर लेते हैं एंड ज्यादातर इसे देखा जाता है इन द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के मेंबर्स में देखा जाता है। सबसे इजी एग्जांपल आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड आप बहुत ज़्यादा छोड़ देते हो, बहुत टाइम तक छोड़ देते हो, तो क्या होता है उसमें आप देखते हो कि कुछ ग्रीनिश सा लेयर हो जाता है। वो कुछ नहीं होता है, वो आपके फंजाई ग्रो हो जाते हैं जिसका नाम होता है राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्पोर कैसे आ गया उसमें, फंजाई कैसे फंजाई कैसे उसमें ग्रो हो गया उस ब्रेड के ऊपर। तो एक्चुअली होता क्या है, जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट करते हैं, जो ये स्पोर्स निकलते हैं उससे, ये स्पोर्स इतने लाइट होते हैं कि ये कभी हवा में ही फ्लोट करते रहते हैं, या तो कभी पानी में चले जाते हैं, या तो कभी लैंड के सरफेस पे गिर जाते हैं। तो यू कैन से कि ये जो स्पोर्स है इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, ब्रेड के ऊपर एक फेवरेबल कंडीशन मिल गया, वार्म ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मिल गया, तो वो वहां सेटल हो जाते हैं और खुद की कॉलोनीज ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ spore formation. It is a type of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction. अगला प्रोसेस है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, हम ये देखते हैं। Vegetative reproduction is the method of plant reproduction where new plants are grown from vegetative parts like stems, leaves, roots. It is like making clones of the plants. तो आप सबने देखा होगा कि पोटैटो, सबके घर में पोटैटो होता है, पोटैटो से छोटे छोटे आउटग्रोथ निकलने लगते हैं, एंड इट इज टेंड दैट अगर आप उसी आलू को जमीन के अंदर रख दोगे, उसे फेवरेबल कंडीशंस ला के दोगे, लाइक पानी दोगे सही से, तो उससे एक नया पोटैटो का प्लांट ग्रो कर जाएगा, उससे एक नया पोटैटो का प्लांट ग्रो कर जाएगा। आप सबने देखा होगा ब्रायोफाइलम, एक प्लांट देखा होगा, उसके लीव से ही दूसरे
और सारे ब्रायोफाइलम के लीव्स का ग्रोथ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें की टेंडेंसी होता है कि उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स हुए, रूट्स हुए, उनसे एक दूसरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो सकता है एंड दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। बेसिकली हमने तो यही पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो आर एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देमसेल्फ, वो क्लोन्स ही अल्टीमेटली बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? वो क्लोन्स ही बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं वो हमने पढ़ लिया, कितने मोड्स होते हैं वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर लेती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, और ये जो इन्वॉल्व्ड है ये डिफरेंट सेक्सेस के होने चाहिए, ये डिफरेंट सेक्सेस के होने चाहिए, एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा। ठीक है, गमीट्स चाहिए, गमीट्स रिक्वायर्ड, गमीट्स, एक मेल गमीट होगा एक फीमेल गमीट होगा, उन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा? एक जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट क्या करेगा? एक उसमें डेवलपमेंट होगा, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा और फिर वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, फिर जैसा कि हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि वेरिएशन देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वेरिएशन देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वेरिएशन देखा जाता है। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा कि इट इज द डिफरेंस इन द फिजिकल ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कितना डिफर करते हैं, उनमें कितना फिजिकल ट्रेट्स का डिफरेंस है, दैट इज टर्म्ड एज वेरिएशन, दैट इज टर्म्ड एज वेरिएशन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। वी सेड दैट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, बट इन द कंडीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है, देयर इज वेरिएशन, वहां वेरिएशन देखा जाता है। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से काफी डिफर करते हैं, बट देयर इज इनहेरिटेंस ऑल्सो, एट द सेम टाइम इनहेरिटेंस भी देखा जाता है। अब ये इनहेरिटेंस क्या था? आपने अगर सही से पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इनहेरिटेंस इज जो भी कैरेक्टर्स, जो भी फिजिकल ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से एक्वायर करता है, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। जो भी फिजिकल फीचर्स या फिजिकल ट्रेट्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग शेयर करते हैं या ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेरे पास और एक सवाल आता है, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों? व्हाई इट इज नेसेसरी? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यहाँ पे वेरिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, यहाँ पे वेरिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है? हमने ये चीज पहले भी डिस्कस किया होगा कि हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, मे बी इट्स द क्लाइमेट, इट इज द टेम्परेचर और वट एवर इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है, ये विथ टाइम चेंज होगा। दैट्स वाई जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी चेंज होना इज वेरी नेसेसरी। अगर वो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट वो खुद को चेंज नहीं करते हैं, वो खुद को अडेप्ट नहीं करते हैं, देन सर्वाइवल इज very difficult, then survival is very difficult. In order to
इंश्योर सर्वाइवल वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है, और वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आ सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं आ सकता. फॉर वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू ensure the survival of that specific species on the earth surface, that's why हम बोलते हैं कि वेरिएशन चाहिए ही चाहिए है, अदरवाइज वो स्पीशीज अर्थ सरफेस पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस, डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो उनके बॉडी को अडेप्ट करना होगा. That's why change is very important, and hence variation is very important, and ultimately we can say कि sexual mode of reproduction is very important to ensure the survival of that species and the continuity of that species on the earth's surface. ठीक है. So today we will focus on this sexual mode of reproduction in flowering plants. Flowering plants में ये जो sexual reproduction होता है वो कैसे होता है, ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है. एक फ्लावर जो होता है, ये जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ किंगडम्स, बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, तो उसमें प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम कौन से किंगडम की बात कर रहे हैं, किंगडम प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है. अब इस किंगडम प्लांट में भी हम एक स्पेसिफिक फाइलम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, फाइलम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंजियोस्पर्म्स आर द ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स. फाइलम एंजियोस्पर्म्स में जो प्लांट्स आते हैं वही सिर्फ फ्लावर कर सकते हैं, बाकी जो 4 होते हैं वो फ्लावर नहीं कर सकते, ठीक है. तो अगर एक फ्लावर की बात की जाए तो इसमें 4 वुल्स या 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसमें 2 एसेंशियल होते हैं एंड 2 नॉन एसेंशियल होते हैं. एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वुल्स. ठीक है. नॉन एसेंशियल वुल को हम नॉन एक्सेसरी वुल भी बोलते हैं, और इसे हम एक्सेसरी वुल बोलते हैं. इट एक्सेसराइजेस, ठीक है. तो इसमें क्या आते हैं, तो एक प्लांट में देयर आर मेजर 4 स्ट्रक्चर्स, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टल. These are the 4 very important structures present in a flower. But इसे हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इन्हें लिखते हैं calyx, corolla, androecium, gynoecium. ठीक है. So sepal क्या होता है, calyx. Sepal, corolla is the petal, androecium is the stamen यानी कि मेल पार्ट, एंड gynoecium is the pistil यानी कि फीमेल पार्ट. तो हमारा जो फ्लावर होता है वो इन 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है. कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें कि ये 2 नॉन एसेंशियल है, ये 2 एसेंशियल है. ठीक है. चलिए अब हम थोड़ा समझते हैं कि फ्लावर्स में ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये कैसे होता है. ठीक है. तो फ्लावर्स में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. प्लांट्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन. तो ये डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है. ठीक है. वी हैव स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम और द मेल पार्ट. स्टैमेन प्रोड्यूसेस pollen grains. ठीक है. एंड वी हैव पिस्टल. पिस्टल इज द फीमेल पार्ट. ये प्रोड्यूस करती है एग सेल, एंड अलोंग विथ एग सेल इसके पास होता है पूरा का पूरा एक ओव्यूल. ठीक है. चलिए इसको समझते हैं. ठीक. तो ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगी. ठीक है. अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में, ये इसमें 2 चीज़ों का फ्यूजन होता है. यहाँ पे 2 चीज़ों का फ्यूजन होता है, 2 चीज़ें फ्यूज करती हैं, इस वजह से वी कॉल दिस प्रोसेस एज डबल
फर्टिलाइजेशन, दो चीजें फ्यूज कर रही है, हेंस वी कॉल इट एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो लेट्स फोकस कि होता क्या है, ठीक है। तो ये जो स्टेमन होता है, स्टेमन रिलीज करता है पॉलन, ठीक है। ये पॉलन उड़ता उड़ता आता है हमारे पिस्टिल के पास, और पिस्टिल का जो स्टिग्मा होता है, इस पिस्टिल का जो स्टिग्मा होता है वो वहां पे लैंड करता है, उस स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो जैसे ही वो स्टिग्मा पे लैंड करता है वहां एक इंटरैक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। वी कॉल दैट एज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इस पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन से ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो पॉलन आया है इस स्टिग्मा के ऊपर, ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं या नहीं। अगर सेम स्पीशीज के हैं तो पॉलन में से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन शुरू होगा, और अगर सेम स्पीशीज नहीं है तो जो पॉलन है स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देगा एंड कोई भी पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा और वो जाके पहुंचेगा ओव्यूल तक, ठीक है। तो अगर मैं इस ओव्यूल की बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो इसके पास प्रेजेंट होते हैं दो सिनर्जिड। ये जो है इनको नाम देते हैं हम सिनर्जिड्स। ये है हमारा एग सेल। यहां प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई, इसकी प्लॉइडी 2n होती है। बाकी सब यहाँ पे जो भी हैं, जितने भी सेल हैं, इन सब की प्लॉइडी n है। और यहाँ प्रेजेंट होता है 3 एंटीपोडल सेल्स। यहाँ प्रेजेंट होता है 3 एंटीपोडल सेल्स जिनकी प्लॉइडी n होती है। तो ओवरऑल इस ओव्यूल को कहा जाता है कि इट इज अ 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7-celled structure. It is a 8 nucleated and 7-celled structure, क्योंकि इसमें 8 न्यूक्लियस है। गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, बट सेल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 सेल्स होते हैं बट न्यूक्लियस 8 होते हैं। और इन सिनर्जिड के पास कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो उस पॉलन से जर्मिनेट होगा एक पॉलन ट्यूब और फिर वहां से निकलेंगे 2 मेल गमीट, वहां से 2 मेल गमीट आएंगे और ये जो एंट्री है इसको गाइड करेगा हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस। इस एंट्री को कौन गाइड करेगा, इस एंट्री को गाइड करेगा फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो जैसे ही वो दोनों मेल गमीट अंदर आएंगे, एक मेल गमीट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से और दूसरा मेल गमीट फ्यूज करेगा एग सेल से, यानी कि फीमेल गमीट से। और एक प्रोसेस कहलाएगा सिनगेमी, एक प्रोसेस कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। और यही सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन मिल के बनते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या होगा, एक मेल गमीट फ्यूज करेगा किससे, फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियाई। तो क्या बनेगा, बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, यानी कि PEN, जिसका प्लॉइडी होगा 3n, क्योंकि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसका प्लॉइडी 2n है और ये मेल गमीट जो है ये n है, ठीक है। और इसे हम नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरा मेल गमीट होगा वो फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, यानी कि फीमेल गमीट के साथ, और क्या बनाएगा, जाइगोट, जिसका प्लॉइडी क्या होगा 2n। और यही जाइगोट फर्दर जाके एक नया बॉडी बनाएगा एंड इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सिनगमी। एंड यही ट्रिपल फ्यूजन प्लस
सिनगमी क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगमी क्या बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, इट इज एक्सक्लूसिवली सीन इन एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो बहुत इजीली हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। If you like the video, please do hit the like button, to subscribe the channel and keep learning and keep growing with us. Have a good day.